Hello everyone, myself Ratin. So today we are going to continue with our environment section, waste management. Okay, it's a very important topic for the mains examination. So now first of all we need to know that what are the different types of waste. So, okay, first are liquid and other are solid. And the third one is gaseous. So now first of all we continue with our liquid waste. First we are going to cover liquid waste management. Okay, as you can see on the blackboard that there is a liquid waste management diagram. Okay, first of all that the liquid waste is collected from all the houses and industries to a wastewater treatment plant where there is a influent. So what basically happened in influent is that the primary influent are slowed down. What happens here? That the primary influent are slowed down so that heavy solids are dropped down like metals and plastic. तो यहाँ पर first in stage 1 है ना, plastics and metals are removed. Now once the byproduct of this plastic and metals are extracted from here, the remaining product is transferred to the bar screens. And what happens in bar screen? It is basically the mechanical removal of the large particles. Mechanical removal of the large particles. Again, the large particles are removed and the byproduct is then transferred to the grit removal. What is grit? Grit are basically the heavier particle than the organically biodegradable products. Example like जैसे अंडे का चिक्कल जो होता है, egg cells है ना, और bone chips, seeds, coffee के seeds है ना, and food waste. ठीक है, वो सब यहाँ पे निकल जाएगा, grit जितने भी हैं. And the remaining product are then transferred to extended aeration, which are then यहाँ पर extended aeration के बाद we get a solid waste है ना, which is then sent to solid disposal, and the liquid is then sent to secondary clarifiers. Okay, now coming to our treatment. So see, we have two stages. One is primary treatment, second is secondary treatment, and after the secondary treatment we have secondary clarifier, filters, ultrawave and reclamation pond, which finally collects the water. So okay, first we go with the primary treatment. What is primary treatment? Primary treatment is the physical setting of the process that removes solid wastewater that enters the primary settling tank is slowed down to enable the heavier solid to settle at the bottom. देखो यहाँ पर होता क्या है, हमने जो देखा फर्स्ट 3 स्टेजेस में इन्फ्लुएंट, बार स्क्रीन्स और ग्रेट रिमूवल, ये बेसिकली क्या है तीनों? दे आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट. यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने या तो उसे छाना, जो हैवियर मटेरियल है उसे रिमूव किया. उसे दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट, या तो हम उसे ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो लाइटर मटेरियल जैसे ग्रीस वगैरह होती है वो टैंक के ऊपर फ्लोट करने लगती है, तो वी रिमूव दैट मटेरियल. और अदर देन दैट जैसे हमने देखा कि प्लास्टिक एंड मेटल इन्फ्लुएंट में हम हटाते हैं है ना, बार स्क्रीन्स में मैकेनिकल रिमूवल करते हैं जो हैवियर है, ग्रिट में जो ग्रिट है जो बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट से ज़्यादा हैवियर है उनको यहाँ रिमूव करते हैं. तो दिस ऑल 3 स्टेजेस आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, वो सेकेंडरी क्वालिफायर्स में होता है. इट इज़ बेसिकली अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस टू स्टेबलाइज द डिजॉल्व सॉलिड, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं
है ना. तो वन थिंग विच वी नीड टू नो इज दैट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सारे के सारे नहीं हटाएंगे हम. ओनली दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ आर रिमूव्ड, है ना, इन द सेकेंडरी क्वालिफायर्स, है ना. तो बेसिकली दीज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर एरोबिक प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन हमें यहाँ पे इन्हें सप्लाई करनी पड़ती है. वी नीड टू सप्लाई ऑक्सीजन, है ना, एरोबिक. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली दीज प्रोसेस टेक प्लेस, है ना. सेकेंडरी क्वालिफायर्स रिमूव द बायोलॉजिकल मास दैट हैज ग्रोन ड्यू टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है. जो भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की वजह से बायोलॉजिकल मास आया वो भी यहाँ से हट जाएगा. दैट मीन्स बायोलॉजिकल मास रिमूवल. ओके. Now, after the this secondary treatment, what can be the next process? So next process is the disinfectant, है ना. It is not the sterilization, मतलब सारे के सारे microorganisms are not removed. Only the microorganisms which are harmful for human health are removed. Okay. Now there is one more process here which is called क्लोरिनेशन. देखिए, या तो वी कैन गिव अ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और एक पुराना तरीका होता था क्लोरीन का, ठीक है. तो क्लोरीन कैन बी यूज्ड इन द लिक्विड फॉर्मेट और द सॉलिड. तो लिक्विड वाला जो था गैस और लिक्विड, ठीक है. इन गैसियस फॉर्म ये ओल्ड प्रोसेस है. इट इज़ एरेटेड, जो अपना लिक्विड है उसे गैसियस क्लोरीन के साथ हम एरेट करते हैं, और जो लिक्विड है दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड. कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट, है ना. One thing is that if we use the chlorination of the water, then it is a bit harmful for the human health. तो उसकी जगह हमने यूज किया ultraviolet radiation. Okay, what ultraviolet radiation does is it disinfection system contact the treated secondary wastewater with ultraviolet light of bulbs that are used in clear housing. Okay. तो अल्ट्रावायलेट रेज किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग अ जर्मिसाइडल फोटोकेमिकल वेवलेंथ. क्या यूज करते हैं? एक वेवलेंथ यूज करते हैं जिसके साथ जितनी भी जर्मिसाइडल, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया है, दे आर मीन्स नॉट एबल टू वर्क, है ना. तो वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं. तो दिस इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना. प्लांट दैट यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मस्ट हैव डुअल यूवी सिस्टम और हैव क्लोरिनेशन एज बैकअप. तो जो यूवी सिस्टम यूज करते हैं वो या तो क्लोरिनेशन बैकअप में रखें या फिर डुअल यूवी यूज करें, ठीक है. नाउ कमिंग टू व्हाई वी नीड दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग. तो देयर आर फ्यू फैक्ट्स. Like most of the river basins in India and elsewhere in the world, है ना, are closed or experiencing moderate to severe water shortage because of simultaneous effect of agriculture growth, industrial and urbanization. तो देखिए, जैसे we have covered in our chapter of water use, है ना, तो उसमें we have discussed that कि वाटर का 3 जगह मेन यूज होता है, ठीक है. फर्स्ट इज हाउस होल्ड, ठीक है. सेकंड इज एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज इंडस्ट्री. सी, इंडस्ट्री का जो 60% वेस्ट वाटर होता है वो इंडिया के अंदर वापस से हम उसे ट्रीटेड करते हैं. लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि हाउस होल्ड में इट इज वेरी लेस, है ना. एग्रीकल्चर में तो इट इज ऑलमोस्ट नील, है ना. तो दीज आर द एरियाज वेयर वी नीड टू इम्प्रूव अवर
दिस ट्रीटमेंट, है ना. व्हाट इज द टोटल वाटर डिमांड, है ना, विच इज सी विद आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑब्वियसली जो पानी है वो तो बढ़ने नहीं जा रहा, है ना. द अवेलेबिलिटी इज जो अवेलेबिलिटी है वो एक स्टेबल लेवल पे रहेगा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है. विद पॉपुलेशन डिमांड भी इंक्रीज करेगी. तो व्हाट वी कैन डू, देखिए पानी जो अवेलेबल है वो तो हम बढ़ा नहीं सकते, या अ लिटिल बिट वी कैन इंक्रीज, लाइक हाँ हम जो समुद्र का पानी है उसे प्यूरिफाई कर लें, ठीक है, उसमें साल्ट रिमूवल कर लें. बट मेन तरीका जो हो सकता है डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने का, दैट इज़ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ओनली, है ना. तो व्हाट बेसिकली इज़ द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैनी यूज ऑफ वाटर दैट आर हाउस होल्ड, है ना, और उन सबको हम क्लीन करें. तो फर्स्ट हाउस होल्ड का जो वेस्ट वाटर होता है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप, ठीक है. वन इज ब्लैक, अदर इज ग्रे, ठीक है. अब ये पूछा जाए कि साहब ब्लैक कौन सा है, ग्रे कौन सा है, ठीक है. तो ब्लैक है हमारा जो टॉयलेट से, सिंक से, ठीक है, किचन की सिंक से निकलता है, और ग्रे है जो बाथिंग से निकलता है, ठीक है, घर की सफाई करी उससे निकलता है, ठीक है. तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड ग्रे वाटर एंड हाउ इट इज रिलेवेंट टू आवर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. सी द ब्लैक वाटर इवन व्हेन इट गोज अंडर दिस होल प्रोसेस, है ना, इट इज नॉट सुटेबल फॉर होम यूज, ठीक है. और जो ग्रे वाटर है इट इज सुटेबल. तो वन थिंग विच वी नो दैट हाउस होल्ड, ठीक है, वो ब्लैक में आया और ग्रे में, ठीक है. नाउ कमिंग टू अवर, है ना, एडवांस ट्रीटमेंट. सी वेस्ट वाटर को हम और एडवांस भी कर सकते हैं, ठीक है. जो हमने अभी किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड बायोलॉजिकल रिमूवल, यूवी वगैरह. अब इनके बाद भी और अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जो कि जैसे मान लीजिए हमें वाटर किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए चाहिए, है ना. तो फॉर दैट वी हैव अ एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. तो नाउ वी विल सी द एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है. एडवांस ट्रीटमेंट में क्या होता है, सी जैसे हमने पानी अगर यूज़ किया एग्रीकल्चर में, तो आपको पता होगा दैट इन एग्रीकल्चर वी हैव टू यूज अवर एनपीके फर्टिलाइजर्स, ठीक है. एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, है ना, एनपीके फर्टिलाइजर यूज करना है. अब नाउ सम ट्रीटमेंट प्लांट में बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, दे आर हार्मफुल, है ना, फॉर ह्यूमन बॉडी, एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा, है ना. तो इनके लिए हमें ये हटाना पड़ेगा. और इवन नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है, जो जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसे हम वापस रिवर में भी नहीं छोड़ सकते. वाई, बिकॉज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अगर एक्सेस रहेगी तो इट में लीड, है ना, टू द एल्गी ब्लूम, ठीक है, एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम क्या होता है, तो विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सेपरेट सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दैट ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक्सेस में क्या होता है, एल्गीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इनकी वजह से, जैसे जब एल्गी हैं तो भाई ये ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, है ना. तो ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है ना, इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन विच इज़ अवेलेबल टू अ ऑर्गेनिज्म, है ना, विद इन द वाटर. तो इसको ना कम कर देते हैं. तो जब ऑक्सीजन कम रहेगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म उसमें मरने चालू हो जाएंगे, ठीक है.
तो एल्गल ब्लूम भी हो जाता है। तो ठीक है, हम क्यों करते हैं इसे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हमें हटाने होते हैं, है ना। ये हाई लेवल ट्रीटमेंट है विच नीड स्पेसिफिक, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलो, दिस वाज वन थिंग विच वी नीड टू नो दैट हाउ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये इसका वाटर का चल रहा है अभी हम लोगों का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब नाउ पॉलिसी एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर वेस्ट वाटर। ठीक है, ऑब्वियसली वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो वी नीड अ पॉलिसी फॉर एवरीथिंग, है ना, बिकॉज अपने आप से तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। वी हैव नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर नेशन, नथिंग एट ऑल। तो व्हाट आर द पॉलिसी फ्रेमवर्क? तो फर्स्ट वी नीड टू नो दैट सीबी, ठीक है, व्हाट इज इट? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड is the controlling authority which regulates, है ना, the program and policy for waste water management। किस तरह रेगुलेट करती है? ओके, एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ मतलब नीड आर फर्स्ट, इट इज़ बेसिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री। तो जब भी आपको एक इंडस्ट्री लगानी है तो यू नीड टू गेट अ परमिशन फ्रॉम MOEF एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। तो जब भी आपको एक इंडस्ट्री लगानी है आपको इन दोनों से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेक दैट या ओके इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस XYZ वेस्ट, ठीक है, तो उसका आप डिस्पोजल कैसे करोगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, एंड व्हाट आर द प्रोसेस, है ना। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली दे गिव अ परमिशन फॉर द इंडस्ट्री टू बी इस्टेब्लिश्ड। नाउ विद ऑब्वियसली द कट थ्रो कंपटीशन, है ना, ग्लोबली, तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट या इन इस चीज़ को, मतलब इट इज़ नो डाउट अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड आवर सेल्फ ऑल्सो, बट हर कोई यही बोलता है कि सर दिस इज़ रेड टेपिज्म, है ना, कि अधिकारियों के हाथ में आपने ज़्यादा पावर दे दिया, इसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो एटलीस्ट फॉलो द रूल्स, है ना। यू नीड नॉट टू गिव एनी वन अमाउंट फॉर करप्शन इफ़ यू रियली फॉलो व्हाट आर द स्टेप्स, है ना, विच दे हैव डिमांडेड। तो बट इनके साथ भी प्रॉब्लम है ना, कि ओके दे गिव यू एवरी प्रोजेक्ट बट उसका कोई क्रॉस चेक नहीं है ना। तो ऑन साइट सिस्टम का वर्चुअल रियलिटी इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। ऑन साइट कि मतलब ठीक है तुम्हें परमिशन मिल गई, तुम उसमें कितना ज़्यादा वाटर को, है ना, रीयूज़ कर रहे हो या फिर कितना प्यूरिफाई कर रहे हो, देयर इज़ नो मैकेनिज्म इन इंडिया फॉर द ऑन साइट वेरिफिकेशन, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड, है ना। बट देयर आर एडहॉक कमेटीज़, ठीक है, there are ad hoc committees at both level, central and state, ठीक है। now one thing which we give like अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है, what I will expect you that you should give at least, है ना, a statement regarding this that there should be a good मतलब a revolution in this mechanism, है ना, कि सेंट्रल और स्टेट जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं देयर शुड बी अ फीडबैक मैकेनिज्म और ऑन साइट वेरिफिकेशन। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? लाइक देखिए कोरोना के केस में सारी इंडस्ट्रियां बंद हुई, है ना, इन द न्यूज़ थ्रू आउट इंडिया और इवन इन द वर्ल्ड यू वर लिसनिंग दैट यार नदियाँ सारी साफ़ हो गई हैं, है ना, जितने भी जल के स्रोत हैं सारे साफ़ हो गए। इनफैक्ट हिमालय आपको इट वॉज अ मेमो दैट आपको वेस्ट बंगाल से दिखने लगा है, ओके, बट इट वॉज अ रियलिटी दैट द पॉल्यूशन लेवल, है ना, वेदर इट बी एयर, वाटर, है ना, और सॉलिड वेस्ट, all three were in a restriction because of the industrial lockdown. Obviously lockdown हमेशा नहीं रह सकता, but we can use this opportunity to improve our, है ना, environmental levels. चलो फिर है ना,
नाउ वी शुड हैव अ केस स्टडी ऑफ अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन. ठीक है. ठीक है. अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन किसके अंडर में आता है? म्यूनिसिपल काउंसिल्स के. ठीक है. आपने पढ़ा होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है. उसके तहत ये सारा जो अर्बन वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सैनिटाइजेशन इट कम्स अंडर म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन. तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सैनिटेशन. ठीक है. अब नाउ वी विल नीड टू गो थ्रू विद फ्यू फैक्ट्स which are given by World Health Organization, UNICEF and है ना. तो these are factual data which we need to know that globally diarrhea है ना is the second leading cause for children under 5 है ना, and 25% of the global diarrhea death occur in India. कितनी? 25% डायरिया. ठीक है. डेथ इन इंडिया. और डायरिया आपको पता है ये अनट्रीटेड और गंदे पानी की वजह से ही होता है ना. और 88 मतलब जितनी ये 25% है इनका 88% है दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू अनहाइजीनिक वाटर ओनली है ना. और लैक एंड सैनिटाइजेशन इन इंडिया हैज लेड टू इकोनॉमिक लॉस ऑफ 6.4% ऑफ द इंडियन जीडीपी. ठीक है. 6.4% ऑफ इंडियन जीडीपी. सी दुनिया मतलब ऑब्वियसली इवन व्हेन यू योरसेल्फ कंसिडर कि सर वो उतने लंबे प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें खर्चा होगा, लेकिन उस खर्चे के साथ आप ये खर्चा भी तो देखिए कि दिस इज द लॉस है ना बिकॉज ऑफ द सैनिटाइजेशन विच वी आर इफेक्टिंग फॉर आवर इंडियन जीडीपी. तो जब 6.4% लॉस है तो कम से कम इसका 5% ही हम लगा दें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, तो ये 6.4% तो बच जाएगा और ऊपर से हमारी हेल्थ भी बच जाएगी. ठीक है. और 6.4% इज इवन ऑन द लोअर साइड. इफ यू रियली कैलकुलेट इट विल बी मच हायर. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस वाज द अर्बन. तो अर्बन सैनिटेशन में सी वन केस स्टडी वी विल सी लाइक अभी आपको याद होगा बिहार फ्लड्स या ऑब्वियसली पप्पू यादव और इनफैक्ट राकेश रंजन है ना, ही वर्कड वेरी हार्ड है ना. तो व्हाट वाज द मेन कॉजेज फॉर द फ्लड? सी नॉट ओनली दैट एक साथ बहुत ज़्यादा पानी गिरा तो द ड्रेन्स वर नॉट एबल, जैसे ये ए हाउस है, बी है, मतलब ठीक है, सी है. तो वहाँ पे हुआ क्या था कि ये सारी ड्रेन से पानी आया. ठीक है. और यहाँ पर पंप हाउस से दे वर नॉट एबल टू पंप द एज फास्ट एज इट वॉज रेनिंग. तो व्हाट वी कैन डू? ऑब्वियसली इट वॉज अ फेलियर, प्लानिंग फेलियर है ना, एट अ ग्रेट स्केल. वाई? Because they have not studied very well that how much is the capacity which is needed for the pump or strategical location of the pump, or in fact it was filled for around 15-20 days. तो 15-20 दिन अगर पानी आपका 6-6 फुट जमा हुआ है तो इट्स अ ब्लंडर, ऑब्वियसली अ स्ट्रेटजिक फेलियर. ओके कि देवर सेइंग कि नहीं सीवियस फंस गया है, तो यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल सेटअप है ना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एवरीथिंग. इनफैक्ट उसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू ही निकालते तो दैट मच वाटर वुड हैव बीन कैटर्ड द नीड ऑफ द होल पटना फॉर अराउंड 20 years है ना. बट ऑब्वियसली
तो नाउ कमिंग टू रूरल सैनिटेशन, ठीक है। अपन ठीक है, बिहार में फ्लड आया, हमने डिस्कस कर लिया, बात भी हो गई, सारे न्यूज़ चैनल ने भी अपना वो, बट रूरल एरिया इज़ वेयर वी डोंट हैव एनी डिस्कशन, ठीक है। प्रोग्राम है हमारा, बट स्वच्छ भारत रूरल मिशन है, बट देर इज़ नो टॉक्स, है ना, इवन इन द मीडिया रिगार्डिंग द रूरल वाटर सैनिटेशन। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो, ठीक है, जितने भी रूरल रोड रहेंगे दे आर कच्चा, ठीक है। और जब कच्चा रोड रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही सारे के सारे नाली यहीं पे छोड़ देते हैं, देर इज़ नो ड्रेन्स, ठीक है। जब ड्रेन नहीं रहेगी तो घर का पानी उन्होंने रोड पे छोड़ दिया जो कि कच्चा है, ठीक है, उसने थोड़ी सी कीचड़ बनाई। आफ्टर दैट वहाँ से ट्रैक्टर निकला, ठीक है, तो ट्रैक्टर क्या किया कि वो खींच बना दिया, खींच, है ना। उसमें क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ट्रैक्टर के 2 टायर्स आर वेरी बिग, ठीक है। और यहाँ पर दे हैव अ मड, है ना। तो रूरल सैनिटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इनफैक्ट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डन अ ग्रेट रिसर्च रिगार्डिंग द रूरल वाटर सैनिटेशन एंड हाउ इट शुड बी हैंडल। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रूरल सैनिटेशन गवर्नमेंट से ज़्यादा इट्स द प्राइमरी इम्पोर्टेंस कि हमें 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा। वन इज़ हाउस होल्ड, ठीक है, जब तक आदमी खुद से नहीं सोचेगा तब तक कुछ नहीं होने जा रहा। सेकेंड इज द एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, मतलब इसे एग्जाम्पल कह दो, प्रधानी के लेवल पे हम काम नहीं करेंगे तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट वी हैव अ रूरल वाटर सैनिटेशन, ठीक है। तो पर्सनल लेवल पे हमें क्या करना है, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब ये नहीं कि कहीं भी लैट्रिन करना है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर घर में, ठीक है, लैट्रिन की व्यवस्था की है, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू नो दैट स्टिल इवन व्हेन दे हैव अ लैट्रिन इन देयर हाउस दे यूज टू प्रेफर, है ना, खेत में जाके लैट्रिन करना, तो इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है। फर्स्ट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, उसका सेफ डिस्पोजल, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के 12,000 लिए लैट्रिन बनाई, पता नहीं किस लिए, ठीक है, वो एक हाथी का दांत ही साबित हो रही है, बिकॉज इवन आफ्टर दैट दे आर एक्सक्रीटिंग इन ओपनली, बच्चे रोड पे ही कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तीसरा सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और चौथा डोमेस्टिक सैनिटाइजेशन एंड फूड हाइजीन, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर का हो गया, उसके बाद फूड हाइजीन। देखिए, हमने अगर खुद से ये किया, ठीक है, तो दूसरा जो बोझा होता है वो कम्युनिटी लेवल पे जो आएगा इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, है ना। तो ऑब्वियसली कम्युनिटी लेवल पे भी, प्रधानी लेवल पे भी वो अच्छा हो पाएगा। तो एट कम्युनिटी लेवल भाई इन्होंने ठीक है बोल दिया कि हाँ हम नाली में ही पानी निकालेंगे, रोड पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इन्हें सबसे पहले तो उसके लिए ड्रेन्स बनानी पड़ेंगी, ड्रेन्स फॉर सेफ डिस्पोजल, ठीक है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द कम्युनिटी लेवल, है ना। और ऊपर से मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सी व्हेन यू गो इन अ बिट डिटेल, है ना, इन द रूरल सैनिटेशन, तो आप लोगों को पता होगा कि हर गांव के अंदर 2-3 पोखर होती थी, है ना। और मोस्ट ऑफ दोज केसेस वो पोखरें
ठीक है, सूखी या फिर उन्हें सुखा दिया गया है ना, देवर ऑक्यूपाइड, और उस पर उन्होंने घर बना लिए। घर तो बना लिए, बट अब गांव का पानी कहाँ जाएगा, वो गया रोडों पे, है ना। और फिर उसके बाद सरकार को गाली दी। तो फर्स्ट उन्होंने ही एक क्राइम को कमिट किया जिसकी वजह से वो कंडीशन आई, ठीक है। उसके बाद देखिए, वी नीड क्लीन इन्वायरमेंट, दैट इज नो लिटरिंग, ठीक है। आप एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दें, ठीक है, कि हाँ हर चीज़ डिब्बे में ही डालनी है। आफ्टर दैट कम्युनिटी कैन क्लेम कि हाँ साहब अब आप कूड़ा नहीं फेंकोगे, आप डिब्बे में ही फेंकोगे। अगर फेंक रहे हो तो उसके ऊपर पेनल्टी लाओ। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन हिमाचल, ठीक है, सिक्किम, है ना, और इवन इन नॉर्थ ईस्ट, है ना, देयर आर सेवरल विलेज लेवल एग्जाम्पल्स वेयर दे हैव क्लीन्ड दैट, या दे आर बायोलॉजिकल, है ना, दे आर नो वेस्ट। इवन इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, है ना, नॉर्थन यूरोप, तो देयर आर फ्यू कंट्रीज विच हैव क्लेम्ड दैट या ओके वी आर नॉट गोइंग टू यूज, मतलब मैनी सिटीज। तो it is a community initiative that okay, when they do something to preserve their natural environment, they have to manage that, okay they will remove the waste removal, है ना। और एक चीज़ है कि ओके अगर हाउस होल्ड में नहीं है टॉयलेट तो एक कम्युनिटी टॉयलेट तो कम से कम, ठीक है, which should be given from the community or pradhan, है ना। Now coming to our, obviously if you have any doubt regarding this, ठीक है, what we studied till now in the waste water management, that उसे कैसे ट्रीट करना है और रूरल और अर्बन एरिया में क्या अंतर है, ठीक है। नाउ कमिंग टू सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रीयूज। तो सॉलिड वेस्ट के केस में वी हैव 4R प्रिंसिपल, ठीक है। सॉलिड वेस्ट के केस में वी हैव अ 4R प्रिंसिपल। इसमें 4R क्या क्या है? फर्स्ट इज रिड्यूस, सेकंड इज रीयूज, ठीक है, एंड थर्ड इज रिसाइकिल एंड देन रिक्लेम। तो फर्स्ट रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस में तो इज द फर्स्ट थिंग दैट हम कुछ कम ही खरीदें, अपनी डिमांड को कम करें। दैट नहीं हम पानी की बोतल नहीं लेते हैं, है ना, अपनी बोतल अपने आप रखते हैं, ओके वी विल यूज़ द वाटर ओनली, है ना, जहाँ भी टैप से लेंगे हम। तो क्या होगा उससे? ओके ऑब्वियसली आपने एक बोतल कम खरीदी तो एक बोतल कम इन्वायरमेंट में गई, तो इट इज़ रिड्यूस, वी रिड्यूस अवर डिमांड, ठीक है। जब रिड्यूस कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो सॉलिड वेस्ट ऑब्वियसली कम ही होगा। नाउ अदर थिंग इज रीयूज, हम अपनी एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करें, है ना। हाउ वी कैन रीयूज? तो वी कैन डोनेट अवर क्लोथ्स, फोन, बुक एंड एवरीथिंग, है ना, बोटल्स। तो नॉट ओनली डोनेट, वी कैन यूज़ अवर सेल्फ, like okay plastic bottles, so okay we can use it in several things, like there is an example where houses are being constructed, है ना, with the help of Pepsi की 2 लीटर वाली बोतलों को they used to fill the sand and with it they are constructing houses and even they are मतलब thermally insulating, है ना। तो we can use such creative activities and we can reuse our waste. Now the fourth thing is recycle, है ना। recycle is can be at the level of our own house, ठीक है, हम उसे खुद से यूज़ करें, या फिर it can be at a level of a community,
है ना, और इवन एट अ लेवल ऑफ कॉपरेशन। तो इसे तीनों तरह से हो सकता है, एट द लेवल ऑफ हाउस होल्ड, कम्युनिटी या कॉरपोरेशन। ठीक है, इवन फ्यू कॉर्पोरेट इन द वेस्टर्न नेशंस आर अर्निंग मिलियंस, है ना, जस्ट बाय रिसाइकलिंग द प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ फोर्थ इज रिकवरी एंड रिक्लेम। ठीक है, तो वेरियस मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड कैलोरिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कैन कन्वर्ट, रिप्रोसेस एंड ब्रेक अप द वेस्ट इनटू न्यू मटेरियल और एनर्जी। ठीक है, उसके थ्रू ऑब्वियसली वी कैन मीट अवर एनर्जी डिमांड्स एंड कैन फॉरवर्ड द एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन। ओके, नाउ दिस वाज द वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और इसका ग्राफ आपने हो ही गया। ठीक है, नाउ जो रिक्लेम है या फिर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट है उसको हम देख लेते हैं, ज़रा टेक्निकल टर्म्स हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस which we can expect, है ना, both in prelims and mains. In fact, this whole topic is highly important for the mains part only, not the prelims, है ना, but still we will, तो जो डिफरेंट मेटर वो ट्रीटमेंट है सॉलिड वेस्ट के, ठीक है, तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो फर्स्ट इज इंसनरेशन। ठीक है, सेकेंड इज कॉम्पैक्स। ठीक है, थर्ड इज पायरोलिस। ठीक है, फोर्थ इज गैसिफिकेशन, एंड फाइनली कंपोस्टिंग। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। तो व्हाट इज इंसरेशन? इट इज अ कंट्रोल्ड कंबशन प्रोसेस फॉर बर्निंग सॉलिड वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, है ना, एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1000 डिग्री centigrades and above to produce gases and residue containing non-combustible material. One of the most attractive feature of the insertion process is that it can be used to reduce the original volume of the combustible. ठीक है, तो ये what is insertion? प्लस पे इन द एक्सेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, इसे हीट करना है। ठीक है, व्हाट इज कॉम्पैक्शन? कॉम्पैक्शन देखिए, जैसे क्रश आपने बहुत बार देखा होगा, गाड़ियाँ जो इंडिया में तो मैंने नहीं देखा ऑब्वियसली, लेकिन विदेशों में जब गाड़ियाँ को कंडम करते हैं तो दे यूज टू क्रश इट, बिकॉज वो ज़्यादा बड़ी रहेगी तो वो ज़्यादा बड़ी जगह भी लेगी, है ना, तो दे यूज टू क्रश इट, दैट इज़ कॉम्पैक्शन। उससे हम क्या क्या अपने गार्बेज की सीमा को कम कर देंगे, मतलब एक छोटी जगह में ले आएंगे। लाइक उतनी बड़ी कार को हम जब क्रश कर दिए तो वो बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज पायरोलिसिस? इट्स डिफाइंड एज अ थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस चार, पायरोलिसिस ऑयल एंड सिनगैस। ठीक है, पायरोलिसिस कब होगा? एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, और इसके क्या क्या थे प्रोडक्ट? चार, पायरोलिसिस ऑयल एंड सिनगैस। ठीक है, वुड टू चारकोल भी कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज गैसिफिकेशन? गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पार्शियल कंबशन ऑफ इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। गैसिफिकेशन में पार्शियल कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ कंपोस्टिंग is the most responsible technical solution for developing countries. कंबस्टिंग आपने मशीन देखी होगी, जैसे आपने जो वो होता है कंपोस्टिंग में
बहुत सारा हम लोग वो डालते रहते हैं ऑर्गेनिक, जैसे गाय का गोबर हुआ, वो सब हुआ, उसे कंपोस्ट बनाया, तो उससे हमारे दो आउटपुट रहते हैं। पहला, एक तो मैन्योर मिलता है हमें, ठीक है, जो खाद होती है, ठीक है, और दूसरा उससे हम गैस भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपनी कुकिंग गैस भी होती है, ठीक है, कुकिंग गैस भी लेते हैं और साथ में मैन्योर भी लेते हैं। ओके, तो दिस वन वाज आवर वेस्ट मैनेजमेंट। एक और कॉन्सेप्ट है वेस्ट मिनिमाइजेशन, है ना, इज द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ इसमें हम किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें हैंडल कैसे किया जाए और क्या क्या डाटा दिया जाए, बिकॉज फैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो गए, कैसे याद रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है, केवल सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है या खाली वेस्ट है। तो इफ़ द क्वेश्चन इज ओनली वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको दोनों सॉलिड और लिक्विड के बारे में बताना है। इफ़ इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर सॉलिड, तो ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, ठीक है। पूरा एक चीज़ याद रखना है, डायग्राम्स जरूर देने हैं, बिकॉज आप कितनी भी कहानी लिखिए, फॉर द इन्विजिलेटर इट इज़ वेरी मतलब गुड, है ना, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इफ यू गिव अ डायग्राम, तो विद इन अ माइक्रो सेकेंड ही कैन आइडेंटिफाई दैट या ओके आपको इतना नॉलेज है ना, और वो जो चीज़ उसे पूरा पढ़ के पता चलेगी, उससे बेटर होता है डायग्राम के थ्रू अपनी नॉलेज को शो कर पाना। ओके, एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।